A very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School, and today we all are going to start our continue our chapter markets around us. In our last chapter, in our last class, we discussed about malls, and after that we talked about consumers and producers. We talked about chain of markets. We started this topic, chain of market, okay, where we get to know about the wholesale market, wholesale trader and retail trader. Wholesale traders are the persons who buys good in large quantities, and retail traders are the persons who sells things at lower price, who sells things in smaller amounts. Okay, so now with the help of some examples, we get to know about the chain of markets, how this chain of market works. Okay, so every city has area for wholesale markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawker whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. He in turn might have bought these from another, even bigger wholesale trader in the city. The city wholesale trader would have bought a large quantities of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of market is set up. When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us. So every city has area for wholesale market. Okay, so सबसे पहले प्रोडक्शन के बाद सबसे पहले गुड्स कहाँ पे पहुंचते हैं? होलसेल ट्रेडर्स के पास पहुंचते हैं. होलसेल ट्रेडर्स के पास वो सामान सप्लाई होता है. उसके बाद सपोज वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फार्मर्स से डायरेक्टली जो है एक बहुत ही बड़ा होलसेलर है, उसने क्या कर लिया, बहुत सारे प्याज खरीद लिए. ठीक है, बहुत सारे प्याज खरीद लिए. ठीक है, सपोज 100 kgs ऑफ अनियंस जो है उसने परचेज कर लिया उस फार्मर से. उसके बाद क्या होगा, एक स्मॉल जो होलसेलर है उसने उससे 70 kgs परचेज कर लिया. उससे कितने कर लिया? 70 kgs कर लिया. अब इससे क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे वेंडर्स है ना, किसी ने 10 किलो परचेज कर लिया, किसी ने 20 किलो कर लिया, किसी ने 5 किलो कर लिया. तो ये क्या है, ये एक चेन है, चेन की तरह वर्क करती है. और फिर हम एज अ कंज्यूमर ये जो वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं इनसे जाके क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं. ठीक है, अनियंस का था, मैंने एग्जांपल दिया, तो सपोज हमने अनियंस को क्या कर दिया, परचेज कर दिया. ठीक है, अनियंस परचेज कर लिए. सो हमारे तक जब भी गुड्स आते हैं तब तक ये जो गुड्स हैं बहुत जगह घूम फिर के आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, और जिसका हमें पता भी नहीं होता. सो आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी. Aftab is one of the wholesale traders who purchases in bulk. In bulk मतलब in large quantities. बल्क का मतलब क्या होता है, इन लार्ज क्वांटिटीज. आफ्ताब जो है एक होलसेलर ट्रेडर है जो बहुत ही बल्कि में, लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स को है परचेज करता है. His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetables reach the market. This is the time when the vegetable markets or mandi starts bustling with activity. The vegetable come in trucks, matadors, tractors, tractor trolleys from farms both near and far. Soon the process of auctions begins. Aftab participates in this auction and decides what he will buy. Today, for example, he bought 5 quintals of cauliflower, 10 quintals of onions. He has a shop in the market where he stores the vegetable that he has bought. From here, he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. They have to organize their purchase so that they can start their shop for the day around 10 in the morning. Now, उसका जो business है normally रात को 2 बजे, ठीक है, 2 o'clock in the morning मतलब सुबह की रात के 2 बजे हो गए. 2 o'clock जो है रात को 2 बजे इसका जो है बिजनेस स्टार्ट होता है, जब वेजिटेबल्स मार्केट में पहुंच जाती है. दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट्स और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी. मतलब इसी टाइम पे जो है मंडी जो होता है ना, होलसेल होती है, मंडी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर जाती है. मतलब बहुत यहाँ पे हमें एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, सब इधर उधर घूम रहे होते हैं जो भी होलसेलर्स होते हैं.
वेजिटेबल्स किस में आती है? ट्रक्स में आती है, मेटाडर्स में आती है। पूछोगे मैम मेटाडर्स क्या होता है? मेटाडर्स का मतलब होता है मेटाडर्स एक बहुत ही मतलब जैसे कि बुल कार्ट्स होते हैं ना, उसके जैसा होता है मेटाडर। ठीक है, बुल कार्ट्स के जैसा होता है मेटाडर, बुल्स के ऊपर रख के आती है। ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हो गई, उस पे आती है। बहुत कुछ पास के जगह से, कुछ पास के खेतों से आते हैं, कुछ दूर के खेतों से आते हैं। और जल्दी ही अब जो ऑक्शन मतलब नीलामी स्टार्ट हो जाती है। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, जब बहुत सारे लोग कंपटीशन में होते हैं और जो सबसे ज्यादा रुपीस देता है उसको फिर क्या है, वो सामान मिल जाता है। तो ऑक्शन स्टार्ट होता है। आफ्टर पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन एंड डिसाइड करता है कि मुझे क्या खरीदना है आज। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर। क्विंटल्स का मतलब 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू, कौन कोई बताएगा क्या मुझे? 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 quintal is equals to 100 kg. So he bought 5 quintals of cauliflower, मतलब 500 किलो उसने फूल गोभी ली। 10 किलो सॉरी उसने कितने 1000 किलो कितने क्या लिया? अनियंस। 1000 किलो उसने प्याज लिए। He has a shop in the market where he stores the vegetable that he has bought. जो भी उसने सामान खरीदा, जो भी सब्जियां खरीदी, उसने उसके पास एक मार्केट है, वहां पे उसने रख दिया। अब वहां पे अब छोटे छोटे हॉकर्स आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, और वो उन्हें ये सारी जो सब्जियां हैं वो सेल आउट करता है। कितने बजे आते हैं? 6, नॉर्मली 6 इन द मॉर्निंग, 6 बजे, सुबह 6 बजे आते हैं। अब देखो, आफ्ताब जो है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जब फार्म से सीधे जो वेजिटेबल्स आ जाती है ना, वहां पे आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं होलसेलर्स, तो ऑक्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो आफ्ताब भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे आज क्या परचेज करना है। तो वो कॉलीफ्लावर और 5 क्विंटल्स कॉलीफ्लावर परचेज करता है, 20 क्विंटल्स अनियंस परचेज करता है। उसके बाद वो उसके पास जो मार्केट है वहां पे जाके क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है। फिर वहां पे हॉकर्स आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं। जो हॉकर्स और शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उससे परचेज करते हैं। और नॉर्मली हॉकर्स और शॉपकीपर्स जो है सुबह 6 बजे आते हैं और उससे सामान लेना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अब 10 बजे उनको अब सेल आउट करना होता है, तो दे हैव टू मैनेज थिंग्स ना, कि कितने बजे के अराउंड वो मैनेज करेंगे। अब 10 बजे उनको मार्केट लगाना है, तो उससे पहले उनको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो उससे पहले वो सारी चीजें परचेज कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर सेल आउट करते हैं। Markets everywhere. So far, we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these goods through the internet, and the goods are delivered at your home. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representative waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shops in the market. So, you all are very much aware about this online shopping thing. You all are aware about it, and so many online platforms are there where we can purchase different types of things like Amazon, Myntra.com. Even we can order food at home. ठीक है, we can order food
junk foods also. Okay, at home, like if we wanted to eat pizza, we can order it in Zomato or Swiggy or Domino's and हम उसे मंगवा सकते हैं, right? तो आजकल जो है खाली शॉप के थ्रू ही आपका जो है कोई जरूरी नहीं है कि शॉप के थ्रू ही हम बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस चले। आजकल जो है हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं। प्लस इवन समटाइम्स क्या होता है, जो डॉक्टर्स और नर्सेस होते हैं ना, तो वहां पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो जो भी मेडिसिन वगैरह आई हुई होती है उसको रेफर करते हैं कि आप इसे रेफर करना, या फिर वहां पे सेल आउट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल है हमारा जो मार्केट जो शॉपिंग है। या फिर हो सकता है कि किसी शॉप पे जाते हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो दिस इज ऑल्सो द वे थ्रू विच वी कैन बाय एंड सेल थिंग्स। So the markets that we looked at above are the ones that we recognize easily. Easily हम देख सकते हैं malls, weekly market, neighborhood market, shopping complexes, etc. है ना? However, there are markets that we may not be so aware of. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizer to grow crops that he purchases from special shops in the city, and they in turn get them from factories. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is similar for any other good. अब बहुत सारे ऐसे गुड्स भी होते हैं जैसे कि जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्टली हमें फाइनल प्रोडक्ट ही हमें मिलता है। बट एक कार को, एक एग्जांपल लो, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। एक कार को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो एक जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो कार को असेंबल करता है, तो वो इंजन्स परचेज करता है, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, अलग अलग चीजें, मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स, व्हील्स, एक्सेल्स, अलग अलग जगह से क्या करता है वो परचेज करता है। और नॉर्मली हम इन्हें ना देख नहीं पाते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ से, हमें तो फाइनल प्रोडक्ट ही मिलता है ना, तो ये इजीली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी गुड ले लीजिए, ठीक है, उस ये सिमिलर है। अब एक फार्मर है, उसे फर्टिलाइजर परचेज करना है, तो वो एक स्पेशल शॉप में जाएगा और फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से उसे जो है फर्टिलाइजर लेके दे दिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। People in urban areas can enter markets without stepping out of their homes via the internet. They use their credit cards to make online purchases. We can use our credit cards, debit cards, और अभी तो UPIs भी चल गया है, जैसे कि हम डायरेक्टली अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट और फोन नंबर कनेक्ट करके हम डायरेक्टली उससे क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे, फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मतलब नॉर्मली इंटरनेट की जरूरत होती है बेसिकली, ठीक है, ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केट्स एंड इक्वालिटी। In this chapter, we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complexes. They are very different people. One is very rich and one is very poor. One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. Obviously, एक के पास बहुत पैसा है और छोटी सी शॉप जो वो बहुत बड़ी सी शॉप जो है सेटअप कर सकता है, और एक के पास बहुत ही कम पैसा है और वो छोटी सी शॉप जो है स्टार्ट करता है अपने छोटे से अमाउंट के साथ। They also earn unequal amounts. उनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अनइक्वल है, ठीक है। हमने देखा ही था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर हम कोई गुड परचेज कर रहे हैं तो उसमें वो 6 टाइम्स, मतलब उसकी जो कॉस्ट होती है 6 टाइम्स हायर होती है होलसेल या उससे वीकली मार्केट के थ्रू या फिर कोई भी स्मॉल शॉप होती है उसके कंपैरिजन में। तो उनका जो प्रॉफिट अर्निंग होता है वो भी कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट होता है। Shop owners similarly, buyers are differently placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. Sometimes buyers भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग जो है सस्ती चीजें भी नहीं ले पाते हैं और कुछ लोग जो है अपने सारे गुड्स जो है वो मॉल से ही परचेज करते हैं। Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depends, among other things, on the money that we have. So basically हम कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, हम कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है बायर्स और सेलर्स के
सेलर्स का ये जो मार्केट है किस पे डिपेंड करता है कि कितने पैसे हैं उनके पास, ऑन द मनी दैट वी ऑल हैव विद अस. ओके, we have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. I will tell you about this in our next chapter. Okay, so now हमने देखा जो chain of markets हैं कैसे पहले ही बन जाते हैं, उस मतलब हमारे पास कोई फाइनल प्रोडक्ट आता है उससे पहले ही चेन ऑफ मार्केट जो है वो बिल्ड हो जाती है. एंड इट इज थ्रू दिस चेन जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो लोगों तक पहुंचता है, अलग अलग जगह पे पहुंचता है, रीच करता है लोगों तक. जब चीजों को बेचा जाता है तो इससे क्या होता है, जितनी ज्यादा चीजें बिकती है तो उससे क्या होता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन जो है इंकरेज होता है कि हाँ ये मार्केट में इस चीज की तो बहुत डिमांड है, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें जो है इसी प्रोडक्ट को इंकरेज करते हैं कि इसी प्रोडक्ट को बनाएं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, लोग जिससे पैसा कमा सकते हैं. बट क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम तक पहुंच पाती है, ये ऑफर करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज? तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है थोड़ा बहुत बताऊंगी कि कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है. Now just look at this picture. This is the picture of a mall. Malls like the one above sell expensive and branded goods. ठीक है, ये मॉल दिख रहा है आपको, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल रही है, कितनी लार्ज बिल्डिंग है, फ्लोर्स है अलग अलग. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली हमें काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं. ठीक है, और दिस इज अ पिक्चर वेयर अ कार बीइंग पुट टुगेदर इन अ फैक्ट्री की डिफरेंट कार के जो अलग अलग जो मटेरियल है, कार को क्या कर रहे हैं यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ठीक है, ये गोल 12 है सस्टेनेबल. देयर आर सो मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम ऐसे हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए बट फ्यूचर जनरेशन की कोई भी उसमें क्या है हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्लस एक रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को भी ज्यादा हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. Okay, so this is all about this chapter, markets around us, where we read about different types of markets, chain of markets, and we talked about how things reach to us. So this is all about today. Thank you so much for joining the class, everyone. Bye bye, take care.